This is about what happened in Uttar Pradesh. Yogi Adityanath's crackdown on mafia continues in the state today. Gangster Atiq Ahmed shooter Mohammad Ghulam's house was bulldozed in Prayagraj. Ghulam is an accused in the Umesh Pal murder case and was seen firing shots during the grisly killing. Prayagraj Development Authority said that the construction was illegal, which is why the bulldozer's action was necessary. But Owaisi's Neta, the UP AIMIM chief, has resorted to fear-mongering. He said that next there will be curbs on namaz. Listen to what Shaukat Ali said. उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है और वो जो कह देता उसके मुंह से निकली हुई बात कानून बन जा रही है ना? एक घर गिरा तो गिर गया, फिर कहां कानून का राज है, फिर कहां अदालतें हैं? लेकिन हालात और वक्त का तकाजा ये है कि अगर हम अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो आने वाला कल हमारे बच्चों को अपनी शनाख्त को मिटा करके जीना पड़ेगा। मौलाना अली मियां नदवी ने अपने खिताब में ये बात कही थी कि मुसलमान सियासी तौर से अगर बेदार नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी मस्जिदों में 5 वक्त की नमाजों पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाएगी और वो चीजें आज दिख रही है। A day will come where there will be curbs even on namaz. I'm only quoting what you just heard. Shaukat Ali, Owaisi's Neta, AIMIM's chief in Uttar Pradesh. Dr. Anila Singh, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Rahul Ishwar, Danish Qureshi, political analyst, Lokesh Jindal also stays on. Now, Danish Qureshi साहब, ये क्या है sir? If this is not fear mongering, what is this? What is the fear mongering? To call किसी को सियासत में बुलाना is a fear mongering. सियासत में बुलाना, ये बोलना कि नमाज बंद हो जाएगी, ये सियासत है। मैं बताऊं आपको ट्रिपल तलाक बिल लाया गया, क्या मुसलमानों से रेफरेंडम लिया गया? पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, वो उन्होंने बिल पास कर दिया जो उस रिलीजन को बिलोंग भी नहीं करते थे। क्या बोल रहे हैं सर? रेफरेंडम नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुना है कि नहीं आपने? है उन लोगों, जी बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा तो लॉ तो पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा, लेकिन बिना रेफरेंडम के करेगा, ऐसा कह दिया था क्या सुप्रीम कोर्ट ने? अब सर अगर आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देंगे तो मुझे तो सर 1 घंटे से ज्यादा लगेगा आपसे फिर आपको समझाने में। डॉक्टर रंगनाथन, I'm sorry to be interrupting Danish, a good friend, but please apologize because what he's suggesting out here is that issues that concern the Muslim community, the judges should belong to the Muslim community. That is what he said exactly. He must apologize for this. No, this is not about judgments, Ranganathan ji. Dr. Ranganathan ji, this is not about the judges. This is all about the law enacted in Parliament. Remember one thing, what did I stated? The law has been enacted in Parliament and not in the court. But endorsed cleared by the Supreme Court, endorsed by the Supreme Court after, a lengthy hearing. Let me allow to complete. Let me allow to complain. Danish Saab, it was my turn now. Please, Danish Saab. Why did the Modi government didn't took the referendum of entire? ये क्या बात कर रहे हैं सर? I mean, what are you saying? ये रेफरेंडम टॉपिक पहले वाले डिबेट में था। डिबेट वो पहला खालिस्तान रेफरेंडम था। आप गलत, आपको शायद ब्रीफ गलत हुआ है, आप दूसरे डिबेट में आए हैं, लेकिन आप तैयारी प्ररेफरेंडम की करके आए हैं। या डॉक्टर रंगनाथन क्विकली, यस। अरे सुनिए, आप कानून, आप डॉक्टर रंगनाथन को भी सुन लीजिए सर। लेट्स गिव टाइम टू वन अदर प्लीज। कम्युनिटी को वो इफेक्ट करेगा। सुनिए, उसके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे बताइए? क्या बोल रहे हैं सर? आई मीन प्लीज, आई मीन दिस इज अनएक्सेप्टेबल। रिड्यूस दिस टू दिस। डॉक्टर रंगनाथन, यस। And also for his kind information, I hate to say this, but only because Danish Saab has asked for it, there was a judge who was a Muslim in that verdict that was declared by the Supreme Court. So please get your facts right. Number 2, and can I please come back to the debate because I prepare for my debates. Please just give me a minute and a half. Don't try to. The issue. Let him make his point. Let's not. Please, let's not talk over each other. Danish Qureshi, please. Sir, please. मैं आपको facts बताऊंगा. Let Dr. Ranganathan have his say. I'll tell you what you said. How is it wrong? I'll tell you that. Sir, अब थोड़ा रुकिए, सब्र कीजिए. मैं बता रहा हूँ आपको.
Yes, thank you, Pranesh and Danish Saab. You know, what has been alleged by the AIMIM, I don't know whether that day will come, whether Muslims will be stopped in mosques from offering namaz, but I am certain that day will come where Muslims will be offering namaz inside Hindu temples. That much I am certain of. You see, the problem out here is as what Goebbels said. The first rule of propaganda is accuse the other person of what you are guilty of. Ram Navami procession, Durga processions, Hanuman Jayanti Shobha Yatra, even Garba celebrations are being attacked and stoned with impunity. लेकिन प्रॉब्लम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को मना कर रहे हैं नमाज पढ़ने का मॉस्क में. क्या बात कर रहे हैं? और ये डरा हुआ मुसलमान का लगा रखा है. ऑल अराउंड अस, ऑल वी सी आर डरा हुआ मुसलमान फ्रॉम जम्मू, where Darawa Muslims are shouting from the top of mosques that they will behead Nupur Tiwari and all those who oppose Azan and Hijab. रंगनाथन जी बहुत पुराना हो गया ये. सुनिए नहीं, प्लीज आप बोलने दीजिए सर, आप बोलने दीजिए उनको. लेट हिम मेक हिज पॉइंट. दानिश कुरैशी साहब, ये तो दिस इज वेरी जस्ट बिकॉज दानिश साहब देखिए, आप मेरे दोस्त हैं. जस्ट बिकॉज यू आर रैटल्ड डजंट मीन यू इंटरप्ट. मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया. प्लीज, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो विक्टिम कार्ड प्लेइंग और जो तकिया वाला है, ये गेम बहुत पुराना है. सो प्लीज ये गेम को प्ले ना करें. प्रॉब्लम उल्टी है. प्रॉब्लम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली हिंदूज आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. हिंदूज आर नो लॉन्गर सेकंड क्लास सिटीजंस इन दिस कंट्री. दे आर 8th क्लास सिटीजंस. एंड दानिश साहब, अब आप बोल रहे थे, अब मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं और इसका जवाब दीजिएगा, गुस्सा मत होइएगा. जब हिंदू लॉज कोडिफाई हो रहे थे, पर्सनल लॉज, रेफरेंडम हुआ था? हाँ, हुआ था सर. शबरीमला में रेफरेंडम हुआ. मैं जवाब दूं. जवाब दीजिए सर, बता दीजिए, एजुकेट अस. नहीं, मैं जवाब दूं. शबरीमला में, शबरीमला में हुआ. आप मुझे ये बता दीजिए कि मुस्लिम लॉ क्यों, मुस्लिम लॉ, अब रंगनाथन जी, अब 2 मिनट मैं बोल लूं. 2 मिनट मैं बोल लूं. 10 सेकंड दीजिए, मैं बोल लूं. मुस्लिम लॉ क्यों कोडिफाइड नहीं किए जा रहे? करवा देते. क्यों नहीं करवाए? ओहो, क्यों नहीं करवाए? बताइए. अब आप बोलिए, आप बोलिए. पर्सनल लॉ बना के छोड़ दिया. एक शाह बानो की जजमेंट तो आपके हवाले से तो सुनिए मेरी बात. बात तो यही है ना. सुनिए दानिश साहब, शाह बानो का जजमेंट याद है तो योगी जी ने विधानसभा में अपने खिलाफ मामले खींच लिए. तो एक क्या था वो तो अच्छा, एक काम नहीं, फिर आप भटक गए. देखिए भटकने नहीं दूंगा मैं. दानिश कुरैशी, टेल मी दिस. ठीक है, लेट्स ऑनर द स्पिरिट. 1 मिनट. डॉक्टर रंगनाथन जी, 1 मिनट. दानिश कुरैशी साहब 1 मिनट. अच्छा ठीक है सर, एक बात सर सुन तो लीजिए. लेट्स हैव इट टुनाइट. आप बोल दीजिए, आई वेलकम यूनिफॉर्म सिविल कोड. बोल दीजिए, चलिए. हाँ, बोल दीजिए. आई वेलकम इट दानिश साहब, आई वेलकम इट. डू यू वेलकम इट? देखिए, सुनिए. अरे सुनिए. अरे वेलकम करने में देखिए, सुनिए क्या वेलकम करिए. कोड बताता हूं, सुनिए मेरी बात. दिक्कत, अरे सुनिए तो, सुन तो लीजिए. पहले वेलकम तो कर दीजिए, उसके बाद यही बैठे हैं सुनने के लिए. आप वेलकम कीजिए, सुनेंगे. अरे सुन तो लीजिए. अरे अभी तो आप बोल रहे थे, अभी आप वेलकम करने में आपको दिक्कत हो रही है. उनसे अरे कहां ये वेलकम करने में दिक्कत हो रही है? तो बोलिए, आई वेलकम यूनिफॉर्म सिविल कोड. हम आपके साथ बोलते. चलिए. बीजेपी के पास कितने मुसलमान, कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं? बोलिए आप, कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव? बोलिए. और जो उनके एक एमपी ने कहा है वो क्या बाकी के सारे दानिश कुरैशी, कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव है? बताइए आप, क्यों नहीं है? एक सेकंड प्रणेश, एक सेकंड. What is the problem with you is you don't want to believe in constitution which gives I'll tell you the problem. Pranesh, 5 seconds. Okay, Dr. Ranganathan. तो politically दानिश साहब प्लीज एक बात सुन लीजिए. प्लीज देखिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह, प्लीज सुन लीजिए. AIMIM का एक भी रिप्रेजेंटेटिव ट्रांससेक्सुअल नहीं है. क्या आप ट्रांससेक्सुअल्स के खिलाफ हैं? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है ये अभी. ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा. फिर से रिपीट करिए. फिर से नहीं रिपीट करेंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं. मैंने जो पूछा, आप यूसीसी को वेलकम कीजिए. बोलिए, आई वेलकम यूसीसी. इतनी क्या परेशानी है भाई? कोई परेशानी नहीं है सर. आपको परेशानी हो जाएगी, जवाब देने नहीं बनेगा, इसीलिए सेविंग यू द एम्बैरेसमेंट. मैं वही नहीं, हमें तो सुनिए,
देखिए हमें तो नहीं, पूरे देश में परेशानी तो 2014 से लगी। क्या बात कर रहे हैं दानिश कुरैशी? यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन आउट ऑफ आर्गुमेंट्स. राहुल ईश्वर कमिंग इन. इतना सारा That is just 2 lines to take a cue from Anand ji. Nearly 50,000 cases against Hindus were filed in Shabarimala. People like me were arrested for weeks Yes. altogether. So nobody Yes. asked for a referendum here. And please, one more thing. How can you even accept the words said by Mr. Ali? See, India is one of the most harmonious places in the whole world. And you are saying, and when Hindus are denied many of the constitutional rights to minorities, you are saying the ulta and saying that, right now, you have to save homes and madrasas. This is very unfortunate. This is scaremongering, fear-mongering. This is counterproductive, and you are unnecessarily creating a paranoia in the minds of Muslims. That you are doing a disservice to Muslims. You are doing a disservice to India and Indian Muslims too. He is confused himself of what he said, what he अभी should be गूगल चेक saying. कर रहे हैं, गूगल कर रहे हैं अभी. गूगल कर रहे हैं, अभी पसीना पोंछ रहे थे वो. दानिश कुरैशी साहब, मैं आता हूं आपके पास. बाकी जो है अनिला सिंह और लोकेश जिंदल से सवाल ले लेता हूं. सुनिए वेलकम करेंगे आप? ये Will you welcome the UCC? जो आपका टोन है ना, दरअसल सुनिए, अरे हम तो वेलकम, सुनिए, हम तो वेलकम ही करेंगे. आप ईमानदारी से मैदान में आइए. सबसे पहले बेईमानी छोड़िए, ईमानदारी से मैदान में आएंगे. क्या बेईमानी क्या है? नहीं, ओवैसी साहब जो जीतते हैं चुनाव, वो बेईमानी से जीतते हैं क्या? जरूरत पड़ी? नहीं, ये ईमानदारी बेईमानी मैं समझा नहीं. सॉरी, मैं ईमानदारी और बेईमानी वाला लॉजिक आपका समझा नहीं. मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं यूसीसी. सुनिए, अरे सुनिए, आप कह रहे थे कि मुसलमान को क्यों छोड़ दिया? यही है कि अगर शौकत अली ने कुछ कहा है, सुनिए, शौकत अली ने कुछ कहा है तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर बीजेपी के सांसद कुछ कहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा. अनिला उस पे सिंह, तो आप जवाब सवाल नहीं दीजिए. करेंगे. एक सांसद उनका दिल्ली में खड़े रह के कहेगा कि इनकी, अनिला सिंह जी जवाब देंगे. अच्छा, अनिला सिंह जी हैं तो बढ़िया है. मैं समझा शायद बीजेपी की तरफ से कोई नहीं है. नहीं सर, बीजेपी की तरफ से अनिला सिंह जी है. अनिला सिंह जी जी, मेरी सबको राम राम. बढ़िया, चलिए. We know it very well that Danish Qureshi ji is part and parcel of this All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin party, a political party which doesn't have a single Hindu member in its organization. So stop preaching us. ये उत्तर प्रदेश है ना साहब, ये योगी जी की सरकार चलती है. यहाँ पर मंच पर खड़े होकर माइक मुंह के सामने लगाकर अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, तो आप केवल और केवल मीडिया में आने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं. बिकॉज मुस्लिम्स लिविंग इन उत्तर प्रदेश, एनी कॉमन मुस्लिम आई एम टॉकिंग अबाउट, दे आर माइटी हैप्पी because they are getting riddance from the criminals, they are getting jobs, so the security is there, and definitely development is there. One district, one product is doing so well. So if we talk about the common Muslim, they are mighty happy. अगर मंच में खड़े होकर ये बोलेंगे हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, हम तो पार्क में नमाज पढ़ेंगे, मुसलमानों को विक्टिम बनाया जा रहा है, मदरसे यहाँ पे बंद किए जा रहे. साहब, अगर गलत तरीके से मदरसे चलाएंगे, अरे अनिला जी, आपको तो बाबरी मस्जिद में पढ़ रहे थे, नमाज को दिक्कत थी. हरियाणा में पार्क में पढ़ रहे तो दिक्कत थी. वहां कहते हैं कि मस्जिद की कोई जरूरत नहीं है. बाय द वे, दानिश कुरैशी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बुलडोजर सिर्फ मुस्लिम्स पे नहीं चल रहे हैं, हिंदू घर भी टूटे हैं. तो ऐसा नहीं है. बट यू नो, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम. यू नो, जस्ट 30 seconds on the show, and let me give it to Dr. Ranganathan. Okay, calm down, Anila Singh, Danish Qureshi, calm down. Last 30 seconds on the show, you have the last word, Dr. Ranganathan. थैंक यू वेरी मच. दानिश साहब, जैसे मैंने कहा, आई रियली हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर हिम. मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं. दानिश साहब, भले आपके लिप्स हिल रहे हैं, लेकिन कान स्टडी रखिए, सुन लीजिए. अभी जवाब, ये सवाल सुन लीजिए. अभी हाल ही में पार्लियामेंट ने एब्रोगेट किया था लेप्रेसी एज बीइंग ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स. दिस वाज दैट disgusting law that still stood in India until 2 years ago. You know who objected to it? Asaduddin Owaisi. He said, I object to your removing leprosy as a grounds for divorce. ये है आपकी progressiveness. अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं. Do you agree with Asaduddin Owaisi that leprosy should remain as a grounds for divorce in India in 2023? It's a simple yes or no answer, Danish साहब. रंगनाथन जी, सुनिए मेरी बात. मैंने आपसे डिबेट जो है शौकत अली साहब के स्टेटमेंट नहीं, क्यों डिबेट, क्यों शौकत अली साहब पे? शौकत अली साहब के जो बॉस है ओवैसी पे भी तो है. नहीं, कम टू द पॉइंट. यू नो, दानिश कुरैशी, आप देखिए, आपको 3 सवाल पूछे, 2 उन्होंने पूछे, 1 मैंने पूछे, आप जवाब नहीं दे रहे. अच्छा, ये बताइए, विल यू वेलकम द यूसीसी?
नहीं तो दिक्कत यही है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी में आप अपोजिशन से सवाल करेंगे। वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, आप रेफरेंडम कर लीजिए, लोकेश जिंदल से कंसल्ट कर लीजिए, रेफरेंडम कीजिए तब तक, सो दैट व्हेन वी मीट नेक्स्ट टाइम ऑन दिस यू डू द डिस्कशन, डू द रेफरेंडम एंड बी रेडी विद द आंसर्स। चलिए, आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट। नो, डू सम रेफरेंडम एंड रिसर्च and be ready the next time when we meet. We'll have the same questions. I thank all of you for joining us. Dr. Ranganathan, Anila Singh, Rahul Ishwar, Danish Qureshi, Lokesh. I'm sorry I couldn't come to you. Sorry.